ତାରିଖ ଥିଲା 20/12/2018, ସମୟ 13ଟା 40। ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବଟି ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୋଟେ ଆଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସେତେବେଳର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସଚିବ ଦୁଇଟା ନୋଡାଲ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରେଫରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି ବା ସଂଯୋଜକ ବିଭାଗ କହିଥାନ୍ତି। ଏକରେ ହେଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ମାନେ STSC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ବିଧି ବିଭାଗ ମାନେ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ ଏବଂ ଆଦେଶଟିକୁ ନିଜ ଲେବୁଲରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଗୃହ ସଚିବ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆଦେଶଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ଆଦେଶର ଅନୁରୂପ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ୱାସ ଫାଇଲଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? 29 ନଭେମ୍ବର 2018। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଧି ବିଭାଗର ତର୍ଜମା, ଉପଦେଶ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଉପଦେଶ, ଖୋଦ୍ ଗୃହ ବିଭାଗ ଯିଏକି କ୍ୟାଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଠାକାର ଲିଗାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମାକୁ ଦେଖି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇଲଟି 20 ଡିସେମ୍ବର 2018ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। କଣ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କର ଆଦେଶଟିକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। କଣ ଥିଲା ସେଠି ତାହା ଆମେ ପଛରେ ଦେଖିବା। ତ ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ରିଭ୍ୟୁ ଡିପିସି ବସିଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ରିଭ୍ୟୁ ଡିପିସି 36 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁକୁ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 14/8/2024ରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଐତିହାସିକ ଆଦେଶଟିର ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ 2018 ମସିହାକୁ ଫେରିଗଲେ? ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆଜି ଅବଲୋକନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି? ଉକ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଆଦେଶଟିରେ କଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହାର କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଆଜି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ସହିତ? କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସେତେବେଳର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ସହିତ ଆଜିର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଆଦେଶଟିର? ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ
ନେଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତଥା ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦ କାଉନସିଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଲାଟେଷ୍ଟ ବା ନୂତନ ଭାବେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲରେ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ରଖିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ତଥା ଅବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏଠାରେ ଆମେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅଧିନିୟମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଅପଡେଟେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିପାରିବେ। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଥିବା ପ୍ରିଭେଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହୁତ ଡିପିସି ତଥା ବହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ନୋସନ୍ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନେଇକିନା ଚାକିରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜେନେରାଲ ନୁହଁ, କି ସେମାନେ କେବେ ବି ଜେନେରାଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କର ମନରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ବା ନୋସନ୍ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ ନୋସନ୍। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ହୁ ଆର୍ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୋଉମାନେ, ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଲୋକ କୋଉମାନେ। ହୁ ଆର୍ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ କହିଥାଉ। ଡଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହାଭ୍ ଦ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଜେନେରାଲ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି। ଡଜ୍ SC ST OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, SC ST OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଜେନେରାଲ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା କି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ SC ST ଜେନେରାଲ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରିବା। Does once reservation taken will not allow a SC ST OBC candidate for considering him as general candidate। ଥରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନେଇକିନା ଚାକିରିରେ ପଶିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର ପ୍ରମୋସନରେ ଆମେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲି ନେଇପାରିବା କି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମେରିଟ୍, ଏଠି ମେରିଟ୍ କ'ଣ, ଯୋଉଟା ମେଧା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମେଧାବୀ, ସେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମେରିଟ୍ କ'ଣ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲି ନେଇପାରୁନଥିବା, ଯୋଉମାନେ ରିଜର୍ଭେସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେରିଟ୍ କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ତାହେଲେ ପଦୋନ୍ନତିରେ ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ। କନସେସନ୍ କ'ଣ, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଇକିନା ଭିତରୁ ଚାକିରିରେ ପଶିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ପ୍ରମୋସନରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆଜି ଖୋଜିବା। ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଡରରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ,
दुईटी कैटेगरी थाए गोटे अनरिजर्व आ गोटे रिजर्व इवन इफ आमर एडमिशन समय एजुकेशन समय आगू गले कन्स्टिट्यूशन जो 15/5/16/5 जो नुआ 15/6/16/6 जो नुआ पशिची ताकू जिते कहबी से आपको दुईटा जिन जनईदेवी तो आमर जो कन्स्टिट्यूशन रही तार अनुजाई आमर दुईटा शिक्षा क्षेत्र हो बा आमर सेवा क्षेत्र हो आमर दुई प्रकार पोस्ट थाए गोटे थाए रिजर्व कैटेगरी पोस्ट आ गोटे है अनरिजर्व कैटेगरी पोस्ट तो रिजर्व कैटेगरी पोस्ट आमर दुई प्रकार एगेन थाए गोटे है आमर वर्टिकल रिजर्वेशन आ गोटे है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये वर्टिकल रिजर्वेशन आ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भितर आमे जो लास्ट वीडियो रे आमे पूरा विस्तार रूपे चर्चा करथिले आपन को मोर अनुरोध रहिबो पूर्व वीडियो को जाई भलरे थरे पूर्ण भावे देखंतु काहे कि ये हला सेवा क्षेत्र नियम गोटिए गोटिए लाइन ही आपनकर टोटल कांसेप्ट बदले दै थाए आमे देखिबा ये जो सबरवाल जजमेंट को लेकिना जो असंविधानिक डीपीसी मानकर जो असंविधानिक प्रोसेस फॉलो करा जाउची जो मोडालिटी फॉलो करा जाउची काहे कि ताहाको आज आमर मान्यवर हाईकोर्ट असंविधानिक दर्शाइछंती केवल गोटे लाइन मिसिंग थिबा जुगु से माने आज बहुत 40% एससी एसटी तांकर माने संविधानिक मौलिक अधिकार रु वंचित होछंती तो सेटा कोन तेनु करी हमकु जानिया पे हेले पूरा वीडियो देखिया पड़िबो टिकनिक देखिया पड़िबो थरे रु दिथर जदी बुझी होनी दिथर तीन थर देखंतु काहे कि ए सब जिंस जानिले छोटिया जिंस ताको खाली मिस इंटरप्रिटेशन करा जाईछि तो जदी आपण पूरा देखिबे ताहले आपण पूरा भलरे बुझी परिबे आ आपण को थ्रू आउट कैरियर रे आपण से तो सेही भले अनियमितता करिया पे केही साहस करिवे नाही ताहले आमे लास्ट क्लास रे देखितिले गोटे जो हमर रिजर्व कैटेगरी रहिला सेटा दुई प्रकार रो गोटे हला वर्टिकल आ गोटे हला हॉरिजॉन्टल ए वर्टिकल भितरे हमर ईडब्ल्यूएस जो रहउची आ एससी कैटेगरी रहउची एसटी कैटेगरी रहउची ओबीसी कैटेगरी रहउची तो संविधान अनुसार चारि जन को हमर दिया जाईची वर्टिकल रिजर्वेशन स्टेटस गोटे हला ईडब्ल्यूएस जोटा कि हमर एबे दिया जाईची जोटा हम लास्ट क्लास रे लास्ट वीडियो रे हम विस्तृत भाबे कहितिले दुई रे हला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आ गोटे हला पछुआ वर्ग हला तो हमर हला चारोटी वर्टिकल रिजर्व कैटेगरी रहिची एंड सिमिलरली आमे अन्य जो माने रहिले अदर कैटेगरी जेमति कि हमर फीमेल पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस माने आमे तांकु मध्य समान स्टेटस समान सामाजिक न्याय भितर पानिया पई आमे आमे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रावधान करचंती जेमिति कि स्पोर्ट्स पर्सन पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन होमगार्ड अग्निवीर फीमेल ए सब जिंस आमे ए जो वर्टिकल भितरे एमान सब थांती तो यार परसेंटेज विषय विगत क्लास रे लास्ट क्लास रे किछटा हमर परसेंटेज रो जो मानटा थिला सेटा भूल थिला गोटे हला हमर स्पोर्ट्स पर्सन पई 1% पीडब्ल्यूडी पई 4% एक्स सर्विसमैन पई 3% होमगार्ड पई 10% अग्निवीर पई 10% एंड फीमेल हेले केते 1/3 तो या विषय हमें देखिबा तो एठी हमर रिजर्वेशन को माने नउचंती हमर एई जेतिकी कैटेगरी मु आपन को देखैली माने समस्त रिजर्व कैटेगरी भितरे जाउचंती एठी यूआर फीमेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ईडब्ल्यूएस फीमेल एससीबीसी फीमेल एससी फीमेल एसटी फीमेल ता सहित जो हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी रहिले मु जोडा कहितली एमाने मध्य एमाने ए जो फीमेल टा हॉरिजॉन्टल हैला भी एमानन को कंपार्टमेंटल माने प्रति जो वर्टिकल कैटेगरी रहिला वर्टिकल कैटेगरी केतेटा ए जो हमर मु कहिला आपन को एठी 1 2 3 4 जो हमर रहिला 1 2 3 4 ए चारिटा भितरे ही हमर फीमेल 1/3 माने यूआर रो 1/3 फीमेल रहिबा निहाती दरकार सेही वर्ग रो आ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रो सेही कैटेगरी रो फीमेल 1/3 रहिबा दरकार तो आंकर भितरे इंटरचेंजेबल हेई पारिबो माने जदी आपनकर फीमेल मिलिलानी ताले ईडब्ल्यूएस मेल नै परिबो किंतु एई फीमेल मिलिलानी माने एससीबीसी फीमेल जाई परिबो नाही एटा अछि हमर जे डिपार्टमेंट रो सर्कुलर अछि तो एससीबीसी कैटेगरी जदी फीमेल न मिलला ताहले आपनकर एससीबीसी मेल सेटा नै परिबो
किंतु एससी फीमेल सेटिक आसपार ना है। तो यूआर फीमेल तो है अनरिजर्व फीमेल या भितर को जदि जे मेरिटियस थी लास्ट यूआर माने कैटेगोरी ऊपर जेतिकी जन सब थे प्रथम जो जो वुमेन कैटेगोरी से माने जे कोनोसी भी कैटेगोरी रो होंतु से माने जाई परिबे यूआर फीमेल कैटेगोरी रे हैला। तो आमे एठी ताले जनरल ताले ईडब्ल्यूएस स्लाइड को आमे पूरा देखिल ताले एबे ईडब्ल्यूएस भीतर आमे टिके जान देबा। ईडब्ल्यूएस एटा आमे लास्ट क्लास रे जिनसटा आमे कहिथिले कंपार्टमेंटल को मु डिटेल बुझेइथिली। तो एबे देखंतु ईडब्ल्यूएस कैटेगोरी रे आमे जो टर्मटा जनरल पई ईडब्ल्यूएस टा काहे की दरकार आपन को जानबा दरकार। तो एटा हला 103 हमर 103 अमेंडमेंट संविधान संशोधन होइतिला। एथिरे 15/6 गोटे आर्टिकल 15/5 परे इनसर्ट कराइतिला आ गोटे हला 16/6 को इनसर्ट कराइतिला। ए 15/5 रे आमे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन माने आर्थिक दुर्बल श्रेणी मानक पई आमे रिजर्वेशन देइथिलु। पूरा क्लियरली लिखा है इज एडेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन माने रिजर्वेशन देबा पई को वर्ग को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मानक देबा पई कोउथिरे एजुकेशनल ता हला 15/5 एटा हला एजुकेशनल एटा हला हमर सर्विस हला कि एटा हला हमर सर्विस आ एटा हला एजुकेशनल। तो एजुकेशनल ले हमर कोन अछि आमे रिजर्वेशन दबु काहा को दबु इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आ सबुटु इंपोर्टेंट हला कोन excluding the amendment aims to provide कौन reservation देवा पाई to those who do not fall in 15/5 15/4 effectively। ए 15/5 और 15/4 भीतर को माने आछंती एससी एसटी आ ओबीसी माने आछंती ता माने एई माने भी रिजर्वेशन नउछन ताले जानि बोले बे रिजर्वेशन। तो एठी जदी से कहितांता आपण मानको जदी कहिबा अनुसार एससी गोटे कैटेगरी एसटी गोटे कैटेगरी आ गोटे हला ओबीसी गोटे कैटेगरी आ गोटे कैटेगरी को जदी आपण जनरल कहतांती बा जोटा आपण कहतंती जनरल एटा हला जनरल पोस्ट जीवो एससी एससी पोस्ट नबो एसटी एसटी पोस्ट नबो। तो ए जो जनरल वार्डटा कोठी भी नाही काहे कि जनरल जो वार्डटा रहिला एठी देखंतु आपण जदी एठी एससी एसटी ओबीसी न होइता ताले आपण जनरल हेताते ताले एठी देखंतु से कहिलानी जे दिस अमेंडमेंट एम्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू जनरल रेदर माने जनरल का माने पई जो माने वीकर सेक्शन से कथा से कहिनी से कोन कहिछि जेउ माने एससी एसटी ओबीसी नुह तांकू छाडी देला पर आउ जेति की जण रहिले सेमानंकु से कोन कहिला सेमानको पाई जो माने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भीतर आसुतिबे तांको पाई रिजर्वेशन इट इज नॉट जनरल मानको पाई। एससी एसटी ओबीसी छाडी देला पर जो बाकी वर्ग रो बाकी जो माने रहिले तांको भितरु जो माने इकोनॉमिकली वीकर सेमानको पाई 10% रिजर्वेशन रो व्यवस्था करले। तेनु करी एठी जो आपनकर प्रथम क्वेश्चन ता थिला जो हमर प्रथम क्वेश्चन ता थिला हु आर रिजर्व कैंडिडेट पूरा क्लियर बुझियाला हु आर जनरल कैंडिडेट जनरल समस्त एठी एससी मध्य जनरल एसटी मध्य जनरल ओबीसी मध्य जनरल जोटा कि आपण हम राज्य रे अछि जोटा एससी बीसी कहउचंती आउ ईडब्ल्यूएस मध्य जनरल ताहले केवल जनरल कैंडिडेट जोटा कहउचंती आमे एठी मन रखंतु केवल मेरिट ए गोटिए जिंस जोटा कि डिसाइड करबो कोन जनरल किए अदरवाइज समस्त हेले रिजर्व कैटेगरी हैला एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एमान हेले रिजर्व कैटेगरी आउ बाकी जो मान रहिले तांको भितरु कोन हो हमरो ईडब्ल्यूएस माने एससी एसटी ओबीसी छाड़ देला पर बाकी सब ईडब्ल्यूएस सेमानको पय 10% रिजर्वेशन अछि। तो एई जो मेरिट जो माने थिबे जो हमरो 50% जो पोस्ट रहिला अनरिजर्व मानको पय एबे 40% अछि जेतु माने ईडब्ल्यूएस 10% नै गले ईडब्ल्यूएस माने हला केते 10% नै गला ईडब्ल्यूएस मानकर तो आ 40% अछि ए जो 40% रे जो माने भी मेधावी थिबे से माने जिबे छात्र ही परंती बा हमकर कैंडिडेट जो माने एम्प्लॉयमेंट पय भी आसाई से माने मध्य जाई परिबे हला। तो एबे आपण बुझी गले हां तापरे 15/5 गला। तो एठी हमें गोटे एग्जांपल माध्यम रे बुझैतिले तो हमें कहितिले कोन ए जो हमरो वर्टिकल टा को पोस्ट बेस्ड काहे को जाय और वैकेंसी टा को हमरो हॉरिजॉन्टल टा को वैकेंसी बेस्ड काहे को जाय
कहीं गोटे कैडर संपूर्ण जो पोस्ट थाए ताकू आमे किछि जेतिकी परसेंटेज से स्टेट रे रिजर्वेशन दिया थाए ता भितर आमे कोन बांटी दउ जेमिति आम राज्य रे हमर राज्य रे नाही ईडब्ल्यूएस तेनु करे आमे यूआर को 50% देलु जदि ईडब्ल्यूएस आस्ता ताले 10% कटि थांता ईडब्ल्यूएस पई जाई थांता आ तेनु करे 40% हे थांता हैला ताले एससीबीसी पई 11.25 एससी पई 16.25 एसटी पई 22.5 हैला तो एई जो पोस्ट गुडा को आमे कोन करू मूलरू ही आको भांगी दै थाउ तो आमे एबे जते बेले गोटे वर्ष रे आमे कैलकुलेट करंती एतिकी मानिन पोस्टन रहिले तो सेठु आमे वैकेंसी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ रो आमे कोन करंती मानिन पोस्टन डिडक्ट करदेला आमे वैकेंसी पाइले तो एई जो वैकेंसी आसिला एटा एई वर्ग पई ही लोक माने आसी परिबे एई जो 32 टा रहिला एथिरे केवल एससीबीसी माने ही आसी परिबे एई जो 32 रहिला एठी केवल एससी कैटेगरी लोक आसी परिबे एठी जो रहिला एठी 50% जो लोक रहिले एठी 50 टा पोस्ट जो रहिला एसटी कैटेगरी रो ही खाली फिलअप हबो तो एई जेहेतु एगुडा हमें प्रति वर्गरु वैकेंसी गुडा को हमें निज निज वर्गरु फिलअप करबा तेनु करी एहा को कुआ जे पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन किंतु ताले वैकेंसी बेस्ड कोन आगुरु किंतु कोन थिला जेते कि भी गोटे वर्षर वैकेंसी आसु ताकू पुणी आउथरे परसेंटेज पके दोथिले तो एठी जो 201 टा पोस्ट आसीथला एससी जदि ताकू हमें परसेंटेज पके दबा ताले 315 रो 50% हमर पळि जिवो यूआर ता माने केते रहिला 157 टा पोस्ट ता माने एठी हमर वैकेंसी हेची 200 टा कहा पई यूआर कैटेगरी पई किंतु एबे जदि जो वैकेंसी ऊपर हमें जदि परसेंटेज पकेइबा ताहले कोन हबो हमर 157 टा कोठी रहइबो यूआर कैटेगरी पई बुझला तो एठी 50 टा पोस्ट कोठी कटिबो यूआर मानकर कटि जिवो तो जदि सिमिलरली जदि केवल खाली एससी माने रिटायर्ड हिताते ताले सेही पोस्टटा भी डेफिनेटली समुद्र भीतर भाग होइतांता जोटा कि प्रॉब्लम क्रिएट हैला तेनु करी माननीय सुप्रीम कोर्ट कहले सेमिति हबनी तमे गोटे कैडर टाकू गोटे यूनिट हिसाब रे धरिबो आ यूनिट हिसाब रे धरिकना ताकू कोन करिवो पोस्ट जेतिकी परसेंट तमर जो पॉपुलेशन हिसाब रे जोडा हमें पढिबा आगु गले सबरवाल जजमेंट जोठा आपनकर कहिछि सेही क्षेत्र रे आपनकर से कोन कहिसंती पॉपुलेशन अनुसार आपनकर परसेंटेज रे डिवाइड कर देबे हैला तो जो डिवाइड करिवे आपनकर से प्रति कैटेगरी प्रति कैडर जो बेस पोस्टटा बा जो प्रमोशनल पोस्ट समस्त सेही लाइट रे भांगी देबे तो जो कैटेगरी जे रिटायर्ड हबो सेही कैटेगरी से जीवो तो एठी बहुत बड़ कांसेप्ट जे आमे यूआर कैटेगरी रे जो माने आसीचु सेही माने खाली यूआर तो ता विषय रे आमे आजि तर्जमा करिबा हैला गला तापरे आमे एठी देखि देले रिजर्व कैटेगरी का कहै जे एठी आ गोटे जिंस खाली देखिबा तो एठी देखंतु डेफिनेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी तो आमे मूलरु कहितिले जोउडा आमे पढिबा ताहा आमे विथ सुप्रीम कोर्ट कर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट कर जो तर्जमा रही ताकू बेस करके आमे करिबा हैला तो एठु आमे देखिले जो इन दिस कंसर्न हमरो डेफिनेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी एटा प्रथमे देखंतु जितेंद्र कुमार सिंह केस जोटा कि हमरो सीए नंबर 74/2010 माननीय सुप्रीम कोर्ट एट पारा 26 से कोन कहले once a candidate takes advantage of relaxation in the eligibility criteria he or she has to be treated as reserve category candidate ता माने आपनकर जदी कोनोसी लोक रिलैक्सेशन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माने जदी आपनकर अपर एज लिमिट सपोज फॉर एग्जांपल मु कहूची अपर एज लिमिट आपनकर फिक्स हेची 32 ईयर केते फिक्स हेची 32 ईयर किंतु आपण जानि चंती एससी एंड एसटी कैटेगरी पाई देयर इज ए 5 ईयर रिलैक्सेशन हैला आउ एससीबीसी मानक पाई बा ओबीसी मानक पाई देयर इज ए 3 ईयर रिलैक्सेशन ताहले एठी बोथ एससी एसटी एंड एससीबीसी हैव टेकन कोन एज रिलैक्सेशन ये सब न तेनु करी एई जिंस से कहिले जे आपनकर जदी कोनोसी कैटेगरी रो लोक रिलैक्सेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अछि ताहा को नेति रिलैक्सेशन करा जाईछि ताहाले माने बहुत समय आपण देखिथिबे एग्जाम बेलकू हमर जो क्राइटेरिया भारतिबो एससी एसटी मान ओबीसी मानक पई 55% एंड अदर मानक पई 60% तो हेटी कोन करा गला मार्क को रिलैक्स कर दिया गला
बहुत समय आपण मगा हेतिबो एई पदवी पई 10 वर्ष रो एक्सपीरियंस दरकार किंतु एससी एसटी ओबीसी हेतिले का 7 वर्ष आ गोटे 5 वर्ष एतिक रिलैक्सेशन ताकर करନ୍ତି तेणु एई सब हैला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर रिलैक्सेशन हैला तो एई जदि रिलैक्सेशन जदि कोनोसी भी कैंडिडेट अवेल करूची वंस ए कैंडिडेट टेक एडवांटेज ऑफ रिलैक्सेशन इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया he or she has to be treated as reserve category candidate ताले आपणकर क्वेश्चन रहइबो जे सर आपणकर यू आर फीमेल केमति रिजर्व कैटेगरी देखंतु आपणकर जो यू आर फीमेल जे रहिले सी आछुंती मार्क रिलैक्सेशन नउछंती कोन रहउछंती मार्क रिलैक्सेशन नउछंती कोन रहउछंती मार्क रिलैक्सेशन आपणकर गोटे जो यू आर कैटेगरी रो जो लास्ट पिलाटी जे माने सिलेक्शन हेइता ता तळकु रिजर्व कैटेगरी प्रथम यू आर कैटेगरी तापर रिजर्व कैटेगरी तो यू आर कैटेगरी परे आपणकर एठो जो टू थर्ड पिला फिलअप हे गला पर जेतेबेला हम लास्ट पिला नै जिबा ता भितरे वन थर्ड फीमेल नथिबे वन थर्ड फीमेल नथिबे ताहले हमकु तळकु आसिया पड़ियो माने मार्क टाकू हमकु लूज करिया पड़ियो मार्क टाकू आउ खसेबा पड़ियो से जो मार्क टाकू रिलैक्स कर देले ता फल रे आमे किछि यू आर कैटेगरी रो फीमेल को अकोमोडेट करि पाइले किंतु जो मार्क रिलैक्स करि देले ताको ऊपरे किछि जण एससीबीसी किंबा एससी किंबा एसटी रो अदर वर्टिकल कैटेगरी रो कैंडिडेट माने रहिबार मध्ये चांसेस रहिला तेनु करी सेठी एठी कोआ गला कोन एमान को से जुगु जो हॉरिजॉन्टल जेतु रिजर्वेशन नउचंती एमाने फीमेल कैटेगरी वन थर्ड आसीबे से वन थर्ड न पाइला पर्यंत हमकु मार्क तळकु जिबाकू पड़िबो तो ये जो मार्क ता हमकु तळकु जिबाकू पडुची ता माने यू आर रिलैक्सिंग द मार्क हैला तो सिमिलरली जेमिति हमनकर नॉर्मल एग्जाम रे यू आर गोटे जदी रखुची 100 मार्क भीतर ये आपनकर एससीबीसी रो पई कट ऑफ हैला केते 75 एससी रो केते कट ऑफ 50 एसटी रो केते कट ऑफ 25 तो एठी कोन होची एठी मार्क रो रिलैक्स करा होची हैला जोटे कि आपनकर ओबीसी कैटेगरी रे बा आपनकर यू आर फीमेल कैटेगरी रे आपनकर निया जाय हैला तो सिमिलरली आपनकर दीपा आईपी केस रे मत से कथा कहला द हियर एटी ओबीसी कैटेगरी कथा आसी देखो द अपेलेंट हु हैज अप्लाइड अंडर ओबीसी कैटेगरी बाय अवेलिंग एज रिलैक्सेशन कोन नै छी मु कहिले बे एज रिलैक्सेशन कोन अपर एज लिमिट ता आपनकर 32 अछि एज रिलैक्सेशन ओबीसी मानको पई कोन 3 वर्ष अधिक तेन को तांको पई 35 वर्ष एससी मानको पई 5 वर्ष तेन को 37 वर्ष तेन को ए जो रिलैक्सेशन ता से नेला एंड आल्सो अटेंडिंग इंटरव्यू अंडर ओबीसी कैटेगरी cannot claim right to be appointed under general category बुझियला तो ए जो झियटी एबे पाइकिना आसिला प्रमो मानो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रे एज रिलैक्सेशन नै किना चाकरी रे पसिला आउ सीए गोटे एससी एसटी मानकर तळे रहिछि मार्क रे ताले ए झियटी को केमिति ओबीसी रे प्रमोशन मिल जाउछि यूआर रे किंतु एससी एसटी को मिलुने ताको हमर असंविधानिक दर्शित आमे आउरी जीवा केवल ई गोटे पॉइंट नो आउर बहुत पॉइंट अछि तो सिमिलरली नीरव कुमार दिल्ली भाई मकवाना सी मध्य कहिथिले एज रिलैक्सेशन ग्रांटेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंग टू एससी एसटी एससीबीसी कैटेगरी इन द इंस्टेंट केस इज एन इंसिडेंट ऑफ रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैला सिमिलरली गौरव प्रधान सेम जिंस से कहिथिले हैला तो एठी मु कहिले आपन को रिलैक्सेशन कोन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रे वेरियस रिलैक्सेशंस आर अवेलेबल कोन रिलैक्सेशन एज लिमिट एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट पैसा देबा को पड़े नहीं रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन मु जोरा कहली 60% आपन थिबो 55% हे जिवो एक्सपीरियंस 10 वर्ष एक्सपीरियंस दरकार पड़ला को आकर 5 वर्ष की 7 वर्ष एमि थिबो तो आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉपीराइट एटा कहला हम रिलैक्स स्टैंडर्ड कुहा जाय तो एई जदी रिलैक्सेशन नेइथो ताहाले आपण यूआर कैटेगरी रे आसी परिबे नाही हैला तो एज रिलैक्सेशन और फी रिलैक्सेशन ऊपर टिके कंट्रोवर्शियल अछि ताकू मो गोटे अलगा वीडियो करबी काहे कि कोउठी आपनकर पडिबो जितेंद्र सिंह कोउठी पडिबो आपनकर दीपाईबी खाली एबे पई कहि दोछि जदी स्टेट रो स्टैट्यूट थिबो गोटे स्टैट्यूट रे रूल थिबो ताहाले से क्षेत्र रे जितेंद्र सिंह द्वारा परिचालित होबे जदी स्टेट रो कोनोसी रूल रे रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन नथिबो फी रिलैक्सेशन नथिबो ताले से दीपाईबी द्वारा होबो तेन को एटा ऊपर मो आ गोटे वीडियो करबी हैला फॉर एग्जांपल इन द case of direct recruitment if sufficient number of candidates belong to SC ST OBC ex servicemen sports person are not available
on the basis of general standard তাহলে জেনারেল স্ট্যান্ডার্ডরে এই পোস্ট গুড়া কেউ পোস্ট এসসি এসটি এসসিবিসি ওমেন এক্স সর্ভিসম্যান স্পোর্টস পর্সন এগুলাକୁ ফিল আপ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଲୋକ ନ ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ କନସର୍ଣ୍ଣ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ମେ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ରିଲାକ୍ସ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ରିଜର୍ଭ କୋଟା ତାହେଲେ ଆମେ ମାର୍କଟାକୁ କ'ଣ କଲେ ପଛେଇ ପଛେଇ ଚାଲିଲେ ମାନେ 75ରେ ମିଳିଲାନି ଆମେ 70କୁ ଆସିଲେ 70ରେ ମିଳିଲାନି ତାପରେ 65କୁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ମାର୍କଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ରିଲାକ୍ସ କରି କରିକା ଚାଲିଲେ ହେଲା ତେଣୁକରି ଯଦି ଯୋଉମାନେ କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ 80 ଯାଇଛି କଟ ଅଫ୍ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 80ରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ 75କୁ ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେଲେ ମାର୍କରେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡାକୁ ଆମର କୁହାଗଲା ଏମାନେ ସବୁ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ଆମର ଓବିସି ଏସସି ଏସଟି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆସନ୍ତି ଏମାନେ ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇକିନା ଚାକିରିରେ ବସିଥାନ୍ତି ହେଲା କାହିଁକି ଯଦି ସେମାନେ ରିଲାକ୍ସେସନ ମାନେ ଯଦି ନେଇକିନା ଲାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ୟୁଆର ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୟୁଆର ଯାଇନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ସଟନଲି ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍ ମାର୍କ ରିଲାକ୍ସେସନ ହେଇପାରେ বা ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଥିବ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ରୁଲ୍ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଆର ନେବାର ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ଦୀପାଇବି ନିରବ ଭାଇ ପକୁଆନା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆମର ଗୌରବ ପ୍ରଧାନ ହେଲା ନିରବ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ମକୁଆନା ଏଇ ଦୀପାଇବି ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କାଟାଗୋରୀ ଯୋଉଥିରେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ ରୁଲ୍ ନଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ এইঠু আমি কনক্লুজন কোন পাইলে ইন কেস অফ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দ্যাট ইজ নট ওনলি এসটিসি ক্যান্ডিডেট বট অলসো এসসিবিসি ওমেন এক্স সার্ভিসম্যান স্পোর্টস পারসন ক্যান্ডিডেট আর অলসো এন্টারিং সার্ভিস আভেলিং সেভারাল রিল্যাক্সেশন ইন এ ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ହେଲା ଯେମିତି କି ଏସସିବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ଭଳି ମାର୍କ ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇଥାଏ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ଫିରେ ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇଥାଏ ତ ଏମାନେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭର୍ଟିକାଲ ଏସସି ମଧ୍ୟ ଏସଟି ମଧ୍ୟ ଏସସିବିସି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହେଲେ ଭର୍ଟିକାଲ and EWS ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଲାକ୍ସେସନଟା ଉଣା ଅଧିକ ସମାନ ଥାଏ ଯେମିତି ଏସସିବିସି ର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଏସସି ଏସଟି ର 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ବୁଝିଲା ବଟ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଇଜ ୱାନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ରିଲାକ୍ସେସନ ହେଲା due to selection under relaxed standard many of the non-SST candidates are placed below SST candidate ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ତାହେଲେ ଏଇ ନୋସନଟାକୁ ଆମେ ମାନି ନେବା ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟର ଯୋଉଟେ ଯୋଉ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିସି ନମ୍ବରଟା ଏଇ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିସି ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଆମର এইଠି ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ବିହାରୀଲାଲ ରାଡ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେସଟା ହେଲା କ'ଣ ବିହାରୀଲାଲ ରାଡ୍ଡା ଭର୍ସେସ ଆପଣଙ୍କର ଟିନୁ ଜେନ୍ ହେଲା ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ କେସରେ ଦେଖନ୍ତୁ এইଠି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ ହେଇଛି there is no separate category like general category ହେଲା the expression belong to general category candidate the expression belong to general category candidate wherever it is mentioned are persons belong to all category जोठी भी general category ଲେଖାଇଥିବ ସେଟା ମାନେ ହେଲା ସବୁ category ସେଠି ଯାଇ ପାରିବେ irrespective of their caste class or community or tribe the unreserved seats euphemistically describe as general जो आमे यूआर category को आमे कोन कहते general category सेही जिनसटाକୁ माननीय सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाई करचंती आर सेगुडा को कोन कहचंती ओपन सीट्स अवेलेबल फॉर ऑल कैंडिडेट माने सब कैटेगरी रो लोक सेठी की जाई परिबे हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड टू कंटेस्ट टू देयर ऑफिस हैला तो आउ गोटे सेमिति हमरो हाई कोर्ट रो देखि दूछ आपन को एठी देखंतु हाई कोर्ट गोटे सुप्रीम कोर्ट रो प्रदीप सिंह देहाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश रो रेफरेंस नैथिले एटा 2019 मसिया रे हमरो आसीथिला जजमेंट केस नंबरटा हला 2019 9 एससीसी 276 प्रदीप सिंह देहाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एठी मान्यवर कोर्ट अपेस कोर्ट कहतिले एवरी पर्सन इज फास्ट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हला तेनु करी समस्त हेले फास्ट हेले जनरल कैटेगरी तो एठी जो जिंसटा आपनकर चेंज हेता मु टिके ना परे आपनको दर्शाई देबी हला तो this is what amaro
ଏବେ बुझीगला आपनकर एसटीसी जो रिजर्व कैंडिडेट को माने जनरल कैटेगरी को माने आपनको मु पूरा सुप्रीम कोर्ट रो थिबा जजमेंट को देखे कि ना कहली तो एबे होम डिपार्टमेंट को गोटे रिप्रेजेंटेशन माने दिया हैतला माननीय मुख्यमंत्री को मध्य या पूर्वरु जे कोन if above mentioned observation of honorable supreme court are being followed माने जोटा से कहले जदि समस्त रिलैक्सेशन नेना चाकरी को पसुथांती आ जो माने रिलैक्सेशन न नेबे ताहले सेही मानु को यूआर कैटेगरी कुहा जिवो ताहले यूआर प्रमोशनल पोस्ट जेते बेला हमें देबा सेते बेल को ए जो यूआर प्रमोशनल पोस्ट उडा को केवल यूआर कैटेगरी रो लोक माने नै परिबे चलो देखियो सेटा तो आमे जो एटा दे पढिथिले जो आमे कंपार्टमेंट रे कहिले एतिकी समस्त हेले जो एतिकी खाली कैटेगरी हेले अनरिजर्व आ बाकी समस्त हेले रिजर्व हला तो एटू आमे एग्जांपल भी देखैथिले फॉर एग्जांपल 706 ले बेटा हमर एएसओ पोस्ट बाहरिला तो प्रति कैटेगरी रो हमर यूआर रो प्रति कैटेगरी 447 पोस्ट बेस जेतु त प्रति पोस्ट पई जेतिकी एलोकेशन अछि सैंक्शन स्टेट अछि आ जेतिकी मैनेज पोजीशन रहिले ताको फेडी दला पर जेतिकी रहला सेही कैटेगरी रो वैकेंसी बारी गला तो सेही कैटेगरी रो वैकेंसीटा सेही कैटेगरी रो लोक माने जाई परियो माने एससी पोस्ट एसटी को जाई परियोनी कि एसटी पोस्ट एससी को जाई परियो नाही सिमिलरली मान जो माने अनरिजर्व कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी रे कंटेस्ट कर परिबा नाही किंतु रिजर्व कैटेगरी माने अनरिजर्व कैटेगरी रे कंटेस्ट करि परिबे तो अनरिजर्व कैटेगरी पे मो मूलरू आपन को कहि दोछि बारंबार गोटे जिंस को रिपीट करूछि जे गोटी ही क्राइटेरिया सेटा हला मेरिट हला तो ये मेरिट को केमिति डिफाइन करा जाए एटा टिके न आगु गले जिबा या पाई हमर मेरिट डिफाइन करा पे हम गोटे जेडोसी दरकार माने जोन ऑफ कंसीडरेशन दरकार सेही जो जोन ऑफ कंसीडरेशन ने आसीथिबा लोकंक भितरु हमकु मेरिट को बाहर करिया को पड़िबो हमकु आउ गोटे जगह रो मेरिट को नै कि ना आउ गोटे जगह रे इंटरनेट को थोइ परिबा नाही जेमिति कि हमर स्टेट गवर्नमेंट रो केचिरा डीपीसी कोन करछथि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रो मेरिट को मो कहिथि जोटा ताको प्रमोशन रो मेरिट से तो कोन करछथि कंपैरिजन करछथि तो एटा जेते बेले हमें देखिबा गोटे एग्जांपल जेते आउटे पर कहिबा देखिबा तो एई भले हमर रिजर्वेशन दियाइते जेहेतु हमर वुमेन टा हला कंपार्टमेंटल मु लास्ट क्लास रे बुझेथिली भले लास्ट वीडियो टारे तो एठी 149 टा जो 447 टा यूआर मानको पय रिजर्व रहिला तो सेमानक भितरु यूआर पोस्ट पय जो 447 रहिला ता भितरु 149 केवल वुमेन माने ही आसी परिबे तो जदि 1 ए 447 भितरे 447 भितरे जदि 149 टा वुमेन नथिबे ताहाले यूआर कैटेगरी रो जो मार्क टा रहिछि ताको हमहु कोन करिया पड़ो रिलैक्स करिया को पड़िबो कोन करिया पड़ो रिलैक्स करिया को पड़िबो कोन पे रिलैक्स करिया पड़िबो टू अकोमोडेट 149 वुमेन्स हैला बुझिबा ताले एटी मार्क रिलैक्सेशन से माने नेले तेनो जदि से माने मार्क रिलैक्सेशन नेले से माने सिजु रिजर्व कैटेगरी तेनो ताको रखाइछि कोठी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी बुझियला से माने यूआर कैटेगरी रखाइ ताको रखाइछि कोठी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी रे रखाइछि हैला तो सिमिलरली एससीबीसी रे 62 टा ता भितरु 21 टा रहले कोन वुमेन 21 गुणन 3 हैला 21 गुणन 3 दैट इज हला 63 3 के 3 1 थर्ड मु कहली यार 1 थर्ड हमर आसीबे कोन वुमेन आसीबे बुझियला तो 109 36 30 108 ता माने 109 रो 1 थर्ड 109 रो 1 थर्ड हला 36 36 टा वुमेन आसीबे एससी रे सिमिलरली 178 एसटी रो 59 हैला 60 30 80 180 हैला बुझियला तो हमें क्लियरली बुझी पाइले बे बट अदर मानक पई दे आर नॉट कंपार्टमेंटल सेटा ओवरऑल कैलकुलेट करा जाय लास्ट क्लास रे कहिथि तो एबे कोन होची कोनटा करा जाउची हमर जो रिजर्व कैटेगरी रहिला ईडब्ल्यूएस एससीबीसी एससी आ एसटी रहिला रिजर्व कैटेगरी आउ यूआर हला अनरिजर्व कैटेगरी तो एई जो हमर असिस्टेंट सेक्शन अफसर परीक्षा हला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समय एठी एई माने ही केवल विदाउट एनी रिलैक्सेशन आसीले किंतु ए माने समस्त कोन गले रिलैक्सेशन नै किना भितर को आसीले जदि रिलैक्सेशन न नेबे एंड लास्ट मेरिट कैंडिडेट ऊपर से मान रहउछन ताहाले से माने कोन दे जिवे यूआर रे पड़ि जिवे तेनो करी समस्त ए माने किछ नै किछ रिलैक्सेशन नै किना आछन तेनो करी ए मान को कहै जाय रिजर्व कैटेगरी ऑल दिस फोर आर वर्टिकल रिजर्व कैटेगरी बुझियला तेनो करी एबे समस्त रिजर्व कैटेगरी कोन गले चाकरी भीतर को पसिले किंतु एई भितरु समस्त को एबे यूआर स्लॉट को पसिया पई दिया गला किंतु एससी आ एसटी मान को पसिया पई दिया गला नै कोन कुहा गला ताकू जे तम पई पोस्ट रिजर्व अछि तेनो तमे एठी जाई परिबो नै ताहाले जदी आमे कहउचंती एठी भले रे बुझंतु बहुत छोटिया और डेलिकेट जिंसटा आमे कहउचंती एससी रो 16.25% पोस्ट रिजर्व अछि ता माने हला एठी केवल एससी कैटेगरी रो पिला माने जाई परिबे आउ केही जाई परिबे नाही एंड सिमिलरली
जदि आम सेम नोशन जा जो एसटी जो 22.5% पोस्ट रिजर्व अच्छी ये एक्सक्लूसिवली केवल एसटी पिला माने जाई परिबे आ कोनोसी भी लोक जाई परिबे नाही ताहले एई सेई जो जाई परिबे नाही बोले एमान कोन कहा जाउची रिजर्व कैटेगरी जा कहा जाउची एठी अलगा कोनोसी लोक जाई परिबे नाही एठी एसटी पिला भी जाई परिबे नाही एठी केवल को माने जाई परिबे आगुर सेटा होतला एससी एसटी भितर एक्सचेंज होतला बट पोस्ट बेस्ड पर एटा पूरा संपूर्ण बंद हो जाइछि तेनु करी एठी केवल एससी पिला माने ही जाई परिबे आ एठी केवल एसटी पिला माने ही जाई परिबे बुझला तो अलगा कोनोसी लोक को एलाउ नाही तो सिमिलरली जो एठी 61.25 रहिला जदि एठी एससी एसटी मानको तमे एलाउ करिवो नाही that means that you are reserving this amount you are reserving 61.25% seat for non SC ST reserve candidate and your candidate बुझियाला तो एटी आपण माने रिजर्व करछन ताहले एई जिंसटा को ही माननीय हाईकोर्ट दर्शाइछन देखो 12 नंबर रे पूरा क्लियरली मेंशन करछंती नो लॉ may mandates reservation for general category candidates in public employment. Consequently, the issue of reserve category candidates occupying or being selected for general seat does not arise. हैला does not arise. So कौन कहिले कहिबे पुरा आउथरे हम नेक्स्ट क्लास रे हम पूरा पढिबा. Consequently, the issue of reserve category candidate occupying or being selected for general category समान जो कहउचंती सब डीपीसी बा बहुत कर्मचारी मन जो भ्रांति नोशन अछि जे एमाने रिजर्व कैटेगरी और जनरल सीट ऑक्युपाई करचंती एटा से माने भूल जिंस कहउचंती रिजर्व कैटे आपन देखिबार अछि जे जो लास्ट मेरिट का लास्ट यूआर रो जे लास्ट कैंडिडेट ये हला सबटू माने यूआर कैटेगरी रो लेस लास्ट मेरिटियस कैंडिडेट हला कैंडिडेट तो ए जो यूआर लास्ट कैंडिडेट ऊपर एनी रिजर्व कैटेगरी अछंती ना नाही एति के आपन को चेक करबा को पड़िबो एनी रिजर्व कैटेगरी लोक अछंती ना नाही जति ए यूआर कैटेगरी ऊपर एनी रिजर्व कैटेगरी रो लोक थिबे मेरिट लिस्ट रे ताहाले सीए कोन हबो यूआर कैटेगरी काहे कि यूआर पोस्ट को धरिया पे गोटिए ही क्राइटेरिया दैट इज मेरिट तो डीपीसी जोटा बसुची डीपीसी कोउथरे बसुची एटा बुझला तो ए 12 नंबर रे से पूरा से जिंस क्लियरली कहिची जीपीसी आउथर टिके ना ऊपर ताको हमें एक्सप्लेन करबा है तो हमें एटी कोन करचंती एई यूआर पोस्ट जोटा रहिला एई यूआर पोस्ट रे हमें एससी एसटी मानो को एलाउ करू नाहाती जदी एलाउ करू नाहाती से माने दो सीनियर दो मेरिटियस तांको हमें एलाउ करू नाहाती मेरिटियस कहबा आगे से माने मेरिटियस मु आपन कहितली जदी गोटे एससीबीसी कैंडिडेट एससी तले रहउची किंतु ए यूआर पोस्ट को जाउची ताले तामर तो हेड परीक्षा करूनो तमे डी सीसीआर ग्रेडिंग करूनो ताले तमे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रो मेरिट को लेकिना करूचो आरे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेरिट रे गोटे एससी एंड एसटी कैंडिडेट यूआर कैंडिडेट जो हमर एससीबीसी कैंडिडेट ऊपर अछि यूआर फीमेल ऊपर अछि ताले सी हैला कोन एई मानको मोर मेरिटियस ताले तमे हेडी मेरिट केम जे डिसाइड करलो जे मु कहितली आपन यूआर कैटेगरी माने मेरिट फास्ट हैला मेरिट देखिबो तापर जाइना कास्ट तो फास्ट तले तमे मेरिट देखिलो जे फास्ट आसी गला जने एससी एसटी लास्ट यूआर कैंडिडेट ऊपर ओटे एससी एसटी रहला तले यू हैव टू टेक देम एज यूआर कैंडिडेट जोटा कि से माने हाई कोर्ट मध्ये कहचंती तमे एठी रिजर्व करि परिबो नाही 61.25 फॉर यूआर एंड नॉन एससी एसटी रिजर्व कैंडिडेट बुझला क्लियर तो ए जिंसटा को clearly you are candidate those who do not avail any sort of relaxation or reservation in direct recruitment. However, the Home Department have been migrating all non-SC/ST reserve candidates like SCBC women, ex-serviceman, sports person to your post by way promotion but denying migration of SC/ST candidate to your post. तेणुकरी केवल SC/ST जोड़ा में कहले SC/ST को छाड़ी बाकी समस्त को से एलाउ करछंती तेणुकरी एठी ए जिंस देखंतु से माने एटा देखिबे आपण माने आरो वर्ष अक्टोबर मास रे ए जिंस कोहा गलानी लिखित आकार रे दिया हेछि जे इंटेंशनली डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट ऑफ होम डिपार्टमेंट indirectly provides a reservation of 61.25 post to non SC/ST candidate including SCBC candidate which
is against the principle of equality and opposing the article 14, 15, 16 of the constitution and leading to कौन communal reservation system instead of post based reservation। तो ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ କମ୍ୟୁନାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ସୌରଭ ଯାଦବ କେସ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଏଇଠି ସୌରଭ ଯାଦବ କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବୋଥ ଭର୍ଟିକାଲ ଓ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କୁ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ରେ ବା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ା ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆହେଇଛି କେବଳ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେବଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କୁ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଜିଡ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୋଲି ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ ତୁ ଏସି ରେ ଆସିବନି ତୁ ୟା ଛଡା କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ତୁ ଏସି ରେ ଆସିଛୁ ମାନେ ତୁ ଏସି ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମାନେ ତୁ ୟୁଆର ଜମା ମାନେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେତେ ତୁ ମେରିଟ ଥା ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମନା କରିଛି ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏଟା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ହେଲା। where a candidate's merit which otherwise entitles his or her to be shown in the open general category is foreclosed as the consequence would be if the state's argument is accepted. Doing so would result in a communal reservation where each social category confined within the extent of their reservation, thus negating merit. The open category is open to all and the only condition only condition for a candidate to be shown in its merit list regardless of whether reservation benefit either type माने कौन vertical हेई पारे बा horizontal हेई पारे ताकू available अछि ना नहीं हैला। तेणु करी आमे एठी पूरा क्लियरली देखिले जे रिजर्व कैटेगरी कोन हैला नॉन रिजर्व कैटेगरी कोन। तो एठी आमे देखिले कोन जे हमरो गोटे कम्युनल रिजर्वेशन होउची ताहाले एबे आमे जिबा क्राइटेरिया प्रमोशन को हैला। प्रमोशन आमे क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन हैला। तो ए क्राइटेरिया प्रमोशन रे देखंतु हमरो जो प्रोसीजर प्रमोशन रो हुए तार देखंतु स्टेप गुडा कोन। प्रथमे हमरो कोन हुए वैकेंसी डिटरमाइन करा जाय। प्रथमे हमरो कोन करा जाय वैकेंसी डिटरमाइन करा जाय। ए जो वैकेंसी डिटरमाइन करिवार कारण हैला आमे वैकेंसी रो कोन करिबा जोन ऑफ कंसीडरेशन को निया जिवो। तेणु करी वैकेंसी फास्ट डिटरमाइन करा जाय। वैकेंसी डिटरमाइन कला परे जोन ऑफ कंसीडरेशन रूल अछि आमे जोन ऑफ कंसीडरेशन को गोटे अलग वीडियो रो कवर करिवा। तो एलिजिबल कैंडिडेट को नै किना आमे गोटे जोन ऑफ कंसीडरेशन गठन करा जाय। तो एई एलिजिबल कैंडिडेट को नै किना हमरो कोन ताकर सुटेबिलिटी चेक करा जाय तापर सिलेक्ट लिस्ट बना जाय तापर ताको डीपीसी अगर प्लेस करा जाय डीपीसी समान को सुटेबिलिटी को मध्ये चेक करे एंड ताकर मेरिट अनुसार ताकर सीनियरिटी को देखि किना से माने कोन करंती गोटे लिस्ट प्रिपेयर करंती जोटा को कहा जाय हमर सिलेक्ट लिस्ट कहा जाय। एई सिलेक्ट लिस्ट ता ही हमर प्रोसीडिंग रे स्थान पाइते ताको हमें कोन करंती अप्रूव करंती एंड ताको हमें गवर्नमेंट रो अप्रूवल पाई पठै थांती। ए जो सिलेक्ट लिस्ट हमर आपण माने जानिथिबे वर्ष को गोटे मात्र डीपीसी हुए पूरा गोटे वर्ष को जाकर माने वैकेंसी को नै किना क्लियर वैकेंसी आ एंटीसिपेटेड वैकेंसी को नै किना थोरटे डीपीसी हुए जे डिपार्टमेंट रो सर्कुलर अनुसार नवंबर डिसेंबर मास रे हुए। तेनु करी एई सिलेक्ट लिस्ट वैलिड हैला 1 ईयर एई वर्ष को जाकर जो हमें नै किना हमें बाहर करंती सेते बेल को हमरो जो डीपीसी हबो हमरो तीनटा जोन ऑफ कंसीडरेशन हबो गोटे यूआर जोन पई गोटे एससी पई आ गोटे एसटी पई हैला। जेतो हमें पदोन्नति कहउचंती तीनटा हबो। तो एबे एई यूआर प्रथम फिलअप हबो यूआर एटा हला फास्ट तापर फिलअप हबो एससी तापर फिलअप हबो एसटी। एटा कोठ आसिला एटा मन रखथातु गोटे के शोभना वर्सेस हमरो तमिलनाडु के शोभना अपन सर्च मार देबे म नले नेक्स्ट क्लास रे देखे देबे के शोभना क्लास जो हमरो जजमेंट रे माननीय सुप्रीम कोर्ट यार मोडालिटी फिक्स करछन। प्रथमे यूआर कैटेगरी फिलअप हो काहे कि ए यूआर कैटेगरी रे जेहेतु समते जाई परिबे तेनु कर प्रथमे आगे आपनकर यूआर कैटेगरी फिलअप हो। ए यूआर कैटेगरी रे जे लास्ट कैंडिडेट एटा देखिबार अछि खाली लास्ट कैंडिडेट जे हैला ताठू ऊपर जेति कि जण रिजर्व कैंडिडेट रहिबे से माने समते कोथरे जिबे से माने जिबे यूआर हैला। ए यूआर फिलअप हला परे तापरे हमर एससी एसटी पोस्ट फिलअप हो। तो हमर क्राइटेरिया प्रमोशन कोन कहउची क्राइटेरिया प्रमोशन देखो एटा मु कहली ओडिसा सिविल सर्विस क्राइटेरिया प्रमोशन रूल 1992 एठी मु केतरा जिंस टिका उडे कहि दोछि आपण मन रखतांतु हमर कोनसी डीपीसी कला बेल को हमहु तीनटा जिंस दरकार। एक रहला क्राइटेरिया प्रमोशन एटा जोटा हमर रूलटा क्राइटेरिया ऑफ प्रमोशन
जदि आपणकर कैडर रूल रे एक्सप्लिसिटली क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन लेखा हेइथिबो ताहले यार दरकार नहीं, किंतु जदि आपणकर हेठी मेंशन हेइ नथिबा बहुत समय बहुत कैडर रूल लेखा हेइ जे आमे फॉलो करू ए क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन 1992 रूल टाको आमे फॉलो करू 1992 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट हेछि तांकर 2022 रे हला। तो क्राइटेरिया प्रमोशन रूल दरकार। द्वितीय जिंस है हमर कोन जोन ऑफ कंसिडरेशन रूल। जोन ऑफ कंसिडरेशन रूल है 1988 एंड क्लैरिफिकेशन है 1991 है। तीन नंबर है हमर कैडर रूल दरकार। जो कैडर रूल रे हमें करिबा माने प्रमोशन बा पद फिलअप करिया पदवी गुड फिलअप करिया तार कैडर रूल दरकार। चार नंबर हमको कोन दरकार वारबी एक्ट दरकार है। ए जो वारबी एक्ट रे देखंतु वारबी एक्ट रो तीनटा सेक्शन अछि प्रमोशन पे। गोटे है प्रमोशन आमर रूल 10 रे आ गोटे रूल 11 रे आ गोटे रूल 12 रे। एठी आमर प्रमोशन ता है तीन प्रकार हुए जोटा कि आमे एक्सप्लिसिटली बुझैथिले लास्ट क्लास रे। ये प्रमोशन आमर दी प्रकार रो गोटे है सिलेक्शन प्रमोशन आ गोटे है आमर है नॉन सिलेक्शन प्रमोशन है। तो आमर स्टेट रे ये जो क्राइटेरिया प्रमोशन देखंतु से कोन कहला क्राइटेरिया प्रमोशन रो रूल 3 रे कहि देला ऑल प्रमोशन देखुछन ऑल प्रमोशन छला कोन सिलेक्शन। तो एठी मु आपन को लिखि देछि ऑल प्रमोशन छला सिलेक्शन ए गोटे जिंस कहला। सेकंड जिंस से कहला जो प्रमोशन दिया जीवो ताका केमि दबो प्रथमे तमे मेरिट देखिबो तापर 2 नंबर सुटेबिलिटी देखिबो तापर 3 नंबर सीनियरिटी देखिबो। जदि मेरिट तमे असेस करू ना हो सेकंड सुटेबिलिटी देखिबो जदि सुटेबल समस्त सुटेबल हे जिवे तापर तमे सीनियरिटी देखिबो। एई सीनियरिटी टा इज ए पार्ट ऑफ मेरिट आउट टिके पर मु कहथि। तो आपनकर क्राइटेरिया प्रमोशन रे दीरा जिंस देखिबार अछि। गोटे हैला सब प्रमोशन हैला हमर स्टेट गवर्नमेंट रो हैला ऑल प्रमोशन सर सिलेक्शन मु लास्ट क्लास रे कहथि। जदि कोनोसी क्राइटेरिया प्रमोशन न फॉलो करना गोटे कैडर रूल ले लेखा हेछि ताकर प्रमोशन दा हैला नॉन सिलेक्शन मेथड ताहाले एटा लागू हो ना। किंतु जदि लेखा जाई नाही ताहाले सबुतक प्रमोशन हम स्टेट रो एई रूल टा द्वारा गवर्न हबो। आ एई रूल कहूची सबुतक प्रमोशन हैला कोन सिलेक्शन एंड कोन प्रोसीजर फॉलो हबो। प्रथमे तमे मेरिट देखिबो मेरिट असेसमेंट करिवो जोन ऑफ कंसीडरेशन ने जो माने जाईचंती ताकू गोटे पैनल को जाय सेही पैनल ताकू ही तमे कंपैरिजन करिवो। ता माने नो तमे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रे एक नंबर सहित आसिकना कंपेयर करिवो आ गोटे रिजर्व कैंडिडेट लोक को तमे सेही पैनल भितरे जो माने जाउछंती सेही मानकर मेरिट टाको चूज करा जिवो। डीपीसी विल चूज द बेस्ट वन फ्रॉम दिस पैनल एंड जीए से तो फास्ट थिबो सीए यूआर जिवो जीए लास्ट कैंडिडेट ऊपर थिबो सीए यूआर जिवो। दिस इज व्हाट एक्चुअली द फंडामेंटल मु आपन देखैबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो मध्ये प्रोसीजर देखैबी तार क्लैरिफिकेशन देखैबी यूपीएस रो देखैबी इवन इफ आपन को सबरवाल जजमेंट रे मध्ये देखैबी हला गला। तापर क्राइटेरिया प्रमोशन गला। क्राइटेरिया प्रमोशन हमें देखिले हमरो टाइप्स ऑफ प्रमोशन तो मु कहली हमरो नॉन सिलेक्शन प्रमोशन नाही किंतु मु देखिछि एआरआई और अमीनो मानकर एटी मु काहे कि एक जिंसटा को रखिली डायरेक्ट तो मु पळे जाथे सिलेक्शन प्रमोशन आपनकर कटक रे गोटे एआरआई अमीनो प्रमोशन हेछि तार डीपीसी रे लिखि चंती ताकर डिपार्टमेंट ताकर जो रूल अछि आपन देखंतु ताकर रूल तारे आपनकर ओडीआरएस रूल कोन गला ओडीआरएस रूल 11 आपनकर एटी देखंतु क्लियरली मेंशन हेछि the promotion to the cadre of revenue inspector shall be made on the basis of merit cum suitability in all respect with due regard to seniority from among the amin and collector mohoris collection mohori जोटा कि पछरे जाइना एआरआई कहा जाइछि एई मानको भितरु प्रमोशन हबो। किंतु कटक नयागढ़ बधे ताकर मु डीपीसी प्रोसीडिंग देखिथिली से माने लेखि चंदी ताकर मेरिट कम सीनियरिटी किंतु तांको ओआरबी एक्ट रो रूल 10 पके किना काटि चंदी ताको कोन करचंती ए ओआरबी एक्ट रो रूल 10 पकेना काटचंती। ओआरबी एक्ट रूल 10 रे कटिला काहे कि माने कोन पे कि भूल हेछि देखंतु ओआरबी एक्ट रूल 10 कहूछि जे सेठी देयर शाल बी नो जोन ऑफ कंसीडरेशन ताको रूल कहूछि नीचे जोन ऑफ कंसीडरेशन होबो नै ताको किंतु काटुचंती रूल 10 पके किना से रूल 10 रे से माने जोन ऑफ कंसीडरेशन नेचंती डीपीसी करचंती। तो जोठी जोन ऑफ कंसीडरेशन हुएनी सेठी सिलेक्शन हुएनी काहे कि सिलेक्शन ता सबले गोटे जोन ऑफ कंसीडरेशन हुए बुझि पाइले।
तो आपण मानकर गोटे धरतु नीट परीक्षा होची तो नीट परीक्षा रे आपण समस्त एलिजिबल नथि जो माने साइंस पढिथिबे सेही माने ही जोन कंसिडरेशन को जिवे जणे कहतबो आगे मु आर्ट्स पढिबी मु कॉमर्स पढिची मु डिप्लोमा करची से कोन समस्त जाई परिबे समस्त जाई परिबे नाही तो सेही जोन ऑफ कंसिडरेशन पई एलिजिबिलिटी कोन साइंस पढिया दरकार बुझी पाइले तो सिमिलरली आपनकर आईआईटी रे मिनिमम कोन मैथमेटिक्स थिबा दरकार तो सेही जो पिला माने जिवे ताकर मिनिमम साइंस रे मैथमेटिक्स गोटे सब्जेक्ट थिबो तो बुझु जिनसर जोन ऑफ कंसिडरेशन पे गोटे क्राइटेरिया ताकर से डीपीसी फिक्स करे बा ताको रूल फिक्स करे एई जो जोन ऑफ कंसिडरेशन ता केमिति गठन हो ताकर क्राइटेरिया कोन सेतिर एलिजिबिलिटी कोन ता भीतर जो लोक जिवे ताको भीतर सिलेक्शन हो ना कि आपण डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रो मेरिट आसीना कंपैरिजन हो कोठी जोन ऑफ कंसिडरेशन हमरो प्रमोशन नो मेरिट से जदि कंपैरिजन हो ताहाले जदि गोटे एससीबीसी पिला जदि गोटे यूआर फीमेल जदि जण आउ गोटे पिला जदि तळे गोटे एससी एसटी तळे रहउछि तांको तमे यूआर को देइ दिकना केमति एससी एसटी पिला ताको यूआर दन देइना ताको डिवाइड करते प्रमोशन को कहबी हैला तो 11 आउ 12 11 टा आउ 12 टा हम पे रेलेवेंट 11 टा हला सिलेक्शन प्रमोशन ए दीटा को सिलेक्शन प्रमोशन किंतु 11 ता हला नॉर्मल प्रमोशन आ 12 रे देखंतु जतबे डिफरेंट सर्विस रु आस्तु माने दीटा तीनटा सर्विस रु गोटे जगह को आस्तु सेमति अछि आपनकर ओआरएस बा हमर ओआरएस अछि किंबा आपनकर ओए नै ओआरएस अछि ओएस रे नाही ओएस रे नाही ओआरएस रे अछि तो सेही भलिया हमर गोटे अछि सेमति गोटे कैडर आ गोटे जूनियर करेक्शनल ऑफिसर सेथुर मध्ये 3-4टा कैडर आछंती हैला तो जदि डिफरेंट सर्विसेस रु जाउतबे ताली रूल 12 टा अप्लाई हो तने नॉर्मली रूल 12 टा जदि डिफरेंट सर्विस न हो ताले एटा अप्लाई हे परिबो नाही ता माने हम पाखरे गोटी रहला रूल 11 तो या ऊपर जे वार भी एक्ट पढेबी जे वार भी एक्ट विषय कहबी सेते बेलकू हम डिटेल कहबी आज हम कोते समय अभाव हमें आगु प्रोसीड करिया हैला तो टाइप ऑफ प्रमोशन अपन जानले एठी प्रमोशन दुई प्रकार गोटे हला सिलेक्शन आ गोटे हला नॉन सिलेक्शन सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन माउ जाउ नहीं सिलेक्शन प्रमोशन दुई प्रकार गोटे हला सीनियरिटी कम मेरिट आ गोटे मेरिट कम सीनियरिटी हैला तो सीनियरिटी कम मेरिट आ मेरिट कम सीनियरिटी कोन देखो या को हमें डायरेक्ट बुझीबा सुप्रीम कोर्ट कोन करछथि ता पर मु लास्ट क्लास रे मु कहि देथि लास्ट वीडियो रे मु कहि देथि जे सीनियरिटी कम मेरिट रे मेरिट हैज लेस इंपोर्टेंट आ सीनियरिटी प्लेज वाइटल रोल मेरिट माने लेस इंपोर्टेंस माने नो जे टोटल दरकार नै गोटे मिनिमम मेरिट दरकार फॉर एग्जांपल मु कहितली गोटे ग्रुप डी रु आपनकर स्टेनो एस्टैब्लिशमेंट रो गोटे जूनियर स्टेनोग्राफ कैडर को जिवे तो जूनियर स्टेनोग्राफ कैडर रे जो कामडा हेबे ता पय गोटे हमरो लेखा गोटे क्षिप्र जो स्टेनो ये दिबा दरकार तो सेठी तांकर गोटे थिबो जे आगे आपनकर घंटा करे एतिकटा लोक से लेखि पाउची तो जदि से माने घंटा करे लेखा हितबो 300 टा शब्द लिखिबार अछि तो आपनकर जो माने 300 टा शब्द ऊपर को पळेले से माने समस्त पळिजो कोठी जोन कंसिडरेशन को किंतु 300 आरपटो गला परे जे सभा लास्ट पिला सी गोटे घंटा रे 1500 बारे किंतु आउ जे सभा ऊपर पिला सी 400 टा वर्ड बारे तो एथिरे कोन हबो हमर मिनिमम मेरिट नै है 300 जे 1500 1600 1700 जे जेते बार अछि सेटा हला तार एक्स्ट्रा मेरिट किंतु से मेरिट एते काम दबो नै मिनिमम मेरिट दरकार किंतु तापर मिनिमम मेरिट नै जोन ऑफ कंसिडरेशन तला आपण सजेइबे सीनियरिटी बेसिस रे आपण सजेइ चलिबे तो जे फास्ट सीनियर ताको आपण प्रमोशन देबा पय बाध्य जदि से सुइटेबल थिबो जदि तारो केते गोटे क्राइटेरिया अछि मोटा आपण को कहिबे आ गोटे केतरा जिन हम कहिथि हां हैला एटी दीटा जिंस हमरो कहि मु गोटे हला एलिजिबिलिटी मेरिट सुइटेबिलिटी सीनियरिटी तो एलिजिबिलिटी कोन एलिजिबिलिटी हला आपनकर रेसिडेंसी पीरियड से कर्मचारी रेसिडेंसी पीरियड कंप्लीट करथिबो गोटे पदवी आ गोटे पदवी को जिबा पय हले किछि वर्ष रा आपन को एक्सपीरियंस दरकार जोटा कि आपन गोटे कार्ड रूल बनेला बेल को अधिकारी माने बा आपनकर लेजिस्लेटिव पूरा प्रॉपर्ली प्लान करना बनेना माने एई पोस्ट रे आपन 7 वर्ष कि 5 वर्ष काम करले जाई कि तबे आर पोस्ट को धरिया पय एलिजिबल हे जिवो तो सेई जो गोटे पदवी रे आपन को मिनिमम एति वर्ष सर्व करिवार अछि सेटा कहै जे आपनकर रेसिडेंसी पीरियड तो आपनकर मिनिमम सेति की पीरियड आपनकर कवर करते दरकार रिलैक्सेशन क्लॉज अछि अलग ताको हमें भीतर को जीवानी तो एति की हमर रेसिडेंसी पीरियड कंप्लीट करथिया दरकार तापरे जति किछि ट्रेनिंग थिबो जेमिति आपनकर
इनिशियली ओएस माने जेतेबेले चाकरी पाई थाने ताकर गोटे ट्रेनिंग थाए सिमिलरली एआरआई ओमिनो मानक ऊपर गोटे ट्रेनिंग अछि ओएसएस कार्डर गोटे ट्रेनिंग अछि तो ए ट्रेनिंग ता आपनकर कंप्लीट करछा दरकार हैला सक्सेसफुली कंप्लीट करछा दरकार जदि ट्रेनिंग परे किछि भी से परीक्षा थिबो ट्रेनिंग परे ताले से परीक्षा मध्ये पास करछा दरकार ताले क्वालिफिकेशन जदि किछि थिबो ए केसटा हम आपन कहू छु डॉक्टर डॉक्टर मानकर एमबीबीएस पॉसिबल जो माने एमबीबीएस करथिबे से माने डॉक्टर ही गले किंतु ता पर डॉक्टर पर ऊपर तार सुपर स्पेशलिटी जो सब आपन जो माने रैंक थाए ता पे आपन को एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दरकार हो तो से माने कोन करंती चाकरी करिया समय लीव नै के जाय के पाठ पढंती तो सेही क्वालिफिकेशन अर्जन कला पर से माने प्रमोशन पे एलिजिबल होती नले एलिजिबल न तो एई गुडा केतोटा माने म एग्जांपल देली एक्जेक्टली से जिंस केता हो ताकर कार्ड रूल में मेंशन आइतिबो ताको देखले जଣା पड़िबो तो एई गुडा हला एलिजिबिलिटी रो गुडा डेफिनेशन तो बेसिकली हमरो तीनटा जिंस प्रथम तीनटा रेसिडेंसी ट्रेनिंग और परीक्षा पास करिया नेट दरकार बाय ट्राई कार्ड रो थाए सुइटेबिलिटी कोन गोटे एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग नथिबो विजिलेंस क्लियरेंस थिबो प्रॉपर स्टेटमेंट सबमिट करथिबो क्रिमिनल केस नथिबो 5 वर्ष सीसीआर आगु थिला 5 वर्ष सीसीआर एबे हि जे लास्ट 60 मास रु 36 मास नियाति दिवा दरकार जदि 36 मास रहि गला तारो आउ 24 मास बळी गला ता पई आपन को पछु जिबाबू पड़िबो जते पर्यंत आपन 24 मास रो सीसीआर न पाइ छथि हैला तो एति की पांचरा जन से थिले जने सुइटेबल हबो तापरे हमर आउ कोन रहिला मेरिट आउ सीनियरिटी चलो जिबा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ए जो सीनियरिटी कम मेरिट हमर जो सिलेक्शन ता हुए सीनियरिटी कम मेरिट कम सीनियरिटी ऊपर गुरुत्व देछन कोन कहछन हम देखिबा तथापि एटु आगु कहि दोछि हम स्टेट रे सीनियरिटी कम मेरिट हुए नाही हमर सब तक कोन हुए मेरिट विथ सुइटेबिलिटी विथ सीनियरिटी फर्स्ट मेरिट तापर हैला सुइटेबिलिटी तापर हैला सीनियरिटी हैला तो हमर एठी कहले सिलेक्शन पोस्ट कैन बी फिल्ड अप ईदर बाय द post of principal of merit and seniority हैला the criteria seniority of merit is the matter promotion postulate that given the minimum necessary merit requisite for efficiency of administration हैला the senior even though less meritorious mo कहली जो क्षिप्रगति जो हम स्टेनोग्राफ पैडटा कहली जे लास्ट पिला से 1500 टा वाड वाडेला बोल जे फर्स्ट पिला से आज्ञा 400 टा वाडुची ताकर मिनिमम क्राइटेरिया है 300 ता कार्ड रूल लेखा कि 300 टा वार्ड बारे अछि तेन कर मिनिमम क्राइटेरिया जति कि जदि सीनियर जे सीनियर मोस्ट से जदि लेस मेरिटियस जदियो किंतु साला पर प्रायोरिटी ताको अधिक प्रायोरिटी दे जिवो कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ मेरिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड एटी जो माने जोना पंचरजन जिबे तांकर मेरिट आ असेस करे दरकार नै तांकर सिंपली गोटे मिनिमम मेरिट को डिसाइड कर देखना आपन जे सीनियर ताको फर्स्ट प्रायोरिटी देबा को पड़िबो for assessing minimum merit मु जोडा कहले आपन को अथॉरिटी डिसाइड करबो डीपीसी डिसाइड करबो मिनिमम स्टैंडर्ड केते consider for promotion such assessment can be made by assessing marks on the basis of appraisal जोडा सीसीआर reading हुए on the basis of service record and interview and prescribing minimum marks which would entitle a person to be promoted on the basis of seniority cum merit तो एटा जो आस्थिला बीबी शिवाया वर्सेस अदांकी बाबू केस रे सुप्रीम कोर्ट करो 98 मसिया आस्थिला हैला एबे रिसेंटली भी आसीसी राम नेगी गोटे केस अछि अपन ताकू भी मध्य फॉलो कर परिबे आउ केते बेला हमें गला रु देखिबा तो नेक्स्ट हैला हमर मेरिट कम सीनियरिटी ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोन कहछथि तो वेयर प्रमोशन इज बेस्ड ऑन मेरिट कम सीनियरिटी इट इज सीनियरिटी हैज लेस रोल सीनियरिटी माने करो रोल किछि सीनियरिटी रोल नाइट सब रोल हैला कोन ये फर्स्ट आसीबो तापर ये सेकंड आसीबो तो सीनियरिटी इज नॉट द डिटरमिनेटिव फैक्टर इट इज सीनियरिटी और डिटरमिनेटिव फैक्टर नो इट कौन डिटरमिनेट फर्स्ट मेरिट আছে দরকার तापर देखना अपन यदि मेरिट समान रहिला एटा सीनियरिटी आसीबो मु देखिबी आपन को तो द कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ मेरिट ऑफ ऑफिसर बीइंग कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीनियरिटी जो माने आपन को कंपैरेटिव असेसमेंट हबो जो माने को सीनियरिटी बेसिस रे अपन सजे देला परे अगर ओटा कंपैरेटिव असेसमेंट हबो तो 100 जन पिला को अपन सीनियरिटी अनुसार सजे देले ए जो 100 जन लोक जोन पंचायत को गले तांकर मेरिट एटी कंपैरिजन हबो एठी आपण कहिबेनी जे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आगे गोटे 1 नंबर सीरियल आ गोटे 100 नंबर सीरियल अरे जो मेरिट भीतर जते जाइछन 10 जन सेटा 1 नंबर तो ऑलरेडी प्रमोशन पाइना पळिलानी तो ता मेरिट से या मेरिट केमति कंपैरिजन हबो तो सेही जो जोन ऑफ कंसीडरेशन भितरे जते जन जाइथिबे सेही मानकर गोटे कंपैरेटिव मेरिट असेसमेंट ऑफ मेरिट हबो हैला
तो तापर से कौन कहले प्रमोशन टू द सिलेक्शन पोस्ट इज नॉट ऑटोमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग इन द सीनियरिटी लिस्ट. द क्वेश्चन ऑफ मेरिट एंटर्स इन मेकिंग प्रमोशन टू द सिलेक्शन पोस्ट. द डिफरेंस बिटवीन द टू concept seniority cum merit and merit cum seniority से कौन कहले while filling of the post on the principle of seniority cum merit the promotion cannot be claimed as a factor by the officer as a matter of right. गोटे राइट नुह एटा किंतु राइट कोठी आसीबो जदि जोन ऑफ कंसिडरेशन न जाई कि ना सिलेक्शन करा गला नाही. एठी मु केता गुडे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहूछ अजय कुमार सुगुला अजित सिंह जानुजा टू तापर आपनकर मनप्रीत सिंह पूनम एई गुडा केस रे कुहायछि गोटे प्रमोशन टा गोटे लोकर कर्मचारी राइट फंडामेंटल राइट से मागी परिबो नाही. अथॉरिटी चाहिले ये करबो किंतु जदि तमे प्रमोशन दउछ लोकटा जोन ऑफ कंसेशन भितर जाईची किंतु ता परे भी ताको सिलेक्ट करूनो ताहाले सेठी गोटा फंडामेंटल राइट वायलेशन हो बुझला. तो वुड पास ओवर जूनियर मैटर ऑफ राइट वाला इफ ए सीनियर ऑफिसर इज फाउंड अनफिट टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ हायर पोस्ट ही वुड बी पास ओवर द जूनियर टू हिम मे बी प्रमोटेड हैला. इन द प्रिंसिपल मेरिट हैज अ रोल इन दिस प्रिंसिपल मेरिट हैज अ रोल but that is not predominant. All eligible candidates in the feeder cadre are subject to the process of assessment of a specified level of minimum necessary merit and those who possess the requisite merit got promoted strictly in order of their seniority. देखुछन तो सर तो एटी सीनियरिटी को मेरिट जोडा आसेला से कहला मिनिमम मेरिट देला पर तापर सीनियरिटी हिसाब रे जीवो ता माने जे फास्ट से आगो जीवो हैला. तापर देखिबा 2009 रे हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सीमा शर्मा केस रे सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट कहले मेरिट कम सीनियरिटी को एक्सप्लेन करिया पई एटी एम्फासिस अधिक देले कहा ऊपर मेरिट एंड एबिलिटी ऊपर एंड वेयर प्रमोशन इज गवर्नड बाय दिस प्रिंसिपल सीनियरिटी प्लेज ए लेस सिग्निफिकेंट रोल. जो एटी ए जो मेरिट कम सीनियरिटी हैज ए लेस सिग्निफिकेंट रोल किंतु सीनियरिटी इज टू बी गिवन वेटेज कोठी किंतु एठी एई जो किंतुटा बहुत इंपोर्टेंट हमर ए जो मान्यवर हाई कोर्ट को केस पई एई किंतुटा निहाती दरकार कोन से कहूँ सीनियरिटी टा ए जो मेरिट कम सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट कौन कहले सीनियरिटी हैज लेस इंपोर्टेंस फास्ट है कौन मेरिट किंतु जदि सीनियरिटी इज टू बी गिवन वेटेज को समय रे व्हेन मेरिट एंड एबिलिटी मोर और लेस आर इक्वल जेते बेले मेरिट डिस्टिंग्विश करि होबनी जेते बेले दिजन जाकर मेरिट समान जड़े 95 गोटे डिपार्टमेंटल एग्जाम हैला दिजन जाक 95 रखिले तो एटी जीए सीनियर मोस्ट सी आगो सिलेक्ट हो अमंग द कैंडिडेट हु आर टू बी प्रमोटेड है. On the other hand, seniority cum merit is concept is given greater importance to the seniority and promotion to a senior cannot be denied unless the promotion concern is found totally unfit. देखुछन सर दर्शक बंधु देखुछन कि तो सीनियरिटी केते रोल प्ले करूची किंतु एठी हमर जो टीपीसी होची बहुत रेयरेस्ट रेयर मु कहिली मोर जाने भीतर गोटे ओआरएस कार्डर गोटे होची आरआई जो हमर ओआरएस कार्डर रे हमर होची ओएस भी होथाई पारे बोते जो माने सीसीआर जो माने आउटस्टैंडिंग थाए तांकर ओआरएस रो जो ओएस प्रमोशन पाउचंती सेठी भी समान मते दोउचंती किंतु आउ बाकी सब जगह रे मेरिट असेसमेंट हो नाही. जदि मेरिट असेसमेंट हो नहीं ताले सीनियर मोस्ट विल प्ले द रोल. एठी देखो आपनकर ता परटर एठी अजित सिंह जानुजा कथा मु कहितली आपनकर अजित सिंह जानुजा से कहितला अजित सिंह जानुजा गोटे फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपनकर देखिथिबे कैचअप प्रिंसिपल हैला. कैचअप प्रिंसिपल ए जो कैचअप प्रिंसिपल इज वेरी इंपोर्टेंट जोटा आज का रोल ले प्ले करछि हैला. एक कैचअप प्रिंसिपल जोटा बाहर थिला ताटा हैला अजित सिंह जानुजा यार पारा 23 रे माननीय सुप्रीम कोर्ट कहथिले इवन इफ सीनियरिटी ऑफ रोस्टर पॉइंट प्रमोटेड डज नॉट काउंट एक्सपीरियंस ऑफ बोथ ग्रुप्स दी जण ग्रुप माने को ग्रुप गोटे रिचर आ गोटे हला कोन अनरिजर्व कैटेगरी जो ग्रुप रहिला तांको भितरे मेरिट माने सीनियरिटी यदि मेरिट नथिबा ताले सीनियरिटी विल बी प्ले द रोल हैला. even if seniority of roster point does not count experience of both groups experience माने हैला seniority हैला can be considered as a part of a merit for further promotion ताले seniority टा को merit हिसाब रे consider करिया पे कुहा गला. तो ए सेम जिंस हमर क्राइटेरिया प्रमोशन मध्यम कुहाइछि देखंतु ए पारा दिन provided that any junior officer of exceptional merit and suitability may be assigned a place higher than his senior and in such case the assessment of higher position to the junior
ऑफिसर शाल बी लिमिटेड टू द सेम बैच और ईयर ऑफ अलॉटमेंट माने गोटे बैच भितर ही से केवल ताको सुपरसीड कर परिबो बैच को तो क्रॉस करि परिबो नाही किंतु एठी बैच ऊपर बैच सुपरसीशन करा चली छी हैला तेणु कर एईटा को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट आकू असंवैधानिक दर्शैतिले आमे लास्ट क्लास रे देखिथिले जे जने सुविधा परिडा मैडम सी बी एससीबीसी कोटा रे पाइथिले एंड तांकर ग्रेजुएशन लिस्ट 103 नंबर थिला 2010 रे जन माने आस्थिले सेई माने समस्त चार जन जाक आस्थिले एंड चार जन जाक संरक्षित वर्गर किंतु एठी उपेंद्र मल्लिक सर आउ स्वागतिका दास मैडम श्याम सुंदर साहू एमानकु श्याम सुंदर साहू एमानकु प्रमोशन दिया गला नाही किंतु एमानक तीन जन जाकर देखो ग्रेजुएशन लिस्ट सीरियल 96 101 100 एमाने यंको सीरियल 103 ता माने एमान जेहेतु 2010 बैच रो गुटे बैच रे आछंती एई जो उपेंद्र कुमार मल्लिक स्वागतिका दास श्याम सुंदर साहू एमान डेफिनेटली याको ठारू अधिक मार्क रखिथिबे किंतु प्रमोशन रे विदाउट असेसिंग मेरिट फाइनेंस डिपार्टमेंट आज गिवन हैला काकू सुबेदिया परिडा मैडम को प्रमोशन दिया गला लास्ट क्लास रे माकू पूरा देखैछि आपण जाइकन देखिया पन ताको अनुरोध करूछि तो एटा आउट बढ़िया एग्जांपल टे मु नेछि देखंतु आपण एठी तीन जण लोक अछंती हमर ए जो लोकटी सी हैला रिजर्व कैटेगरी रो हैला ए लोकटी हैला रिजर्व कैटेगरी रो हैला आ बी सी हैला अनरिजर्व कैटेगरी रो से माने प्लस 2 एग्जाम देले ए प्लस 2 एग्जाम रे ए रखिला 350 500 रु बी रखिला 450 सी रखिला पूरा 500 रु 500 माने ये हैला 100% ये 90% ये 70% रखी कि ना तीन जन जाको कोन करले परीक्षा प्लस 2 एग्जाम पास करले हैला ए पास कर साला पर से माने कोन करले प्लस 2 रे साइंस पढिथिले तेन करे समस्त कोन करले एग्जाम देले नीट एग्जाम कोचिंग नेले आलेन रे कोचिंग नेले आकाश रे कोचिंग नेले आईबू सापाड़ी एगुला कर आपन कोचिंग नै कि ना ये कोन करले हमर जो ए पिलाटी जो 600 मार्क नीट एग्जाम हेची सेथरे यूआर रो कट ऑफ जेसी 550 केसी रो कट ऑफ जेसी 350 ए जो ए पिलाटी 380 रखिछि माने यूआर कैटेगरी तळे से रखिछि मार्क 380 रखिछि बोली से मेडिकल पाइला जदी से यूआर हेता से पाइ न था मेडिकल एग्जाम पढिया पे सुविधा एमबीबीएस पढिया पे ताकू चांस मिली न था सिमिलरली ए जो बी पिलाटी 560 रखिछि कट ऑफ जेसी केते 550 सिमिलरली सी पिलाटी 600 मार्क रखिछि ए पिलाटा 100% प्लस 2 रे रखतिला एथिरे पूरा 600 रु 600 माने दी टांगर से 100% रखिला तो एबे नीट एग्जाम देखना तीन जन जाको कोन करले एमबीबीएस पाठ पढिले एमबीबीएस पद पाठ पढि किना ए पिलाटे 70% रखिला बी पिलाटा 90% रखिला सी पिलाटा कोन करला 100% रु 100% एठी मध्ये सी पिलाटा 100 रु 100 रखिला तापर पढि साइला परे आपनकर जो परीक्षा जो डॉक्टर पोस्ट बाहरला तो जो डॉक्टर पोस्ट बाहरिला एथिरे मिनिमम मार्क थिला एमबीबीएस रे 65 रखितिले ही आपण एटा को पके परिबे तो ए माने जेहेतु समते 65 रखिसंती तन कर समते जोन ऑफ कंसिडरेशन को आसीले किंतु एई पिलाटा पोस्ट ग्रेजुएट पाइला तन कर सी आउ परीक्षा देलानी किंतु एई दि जण पिला को भितरे ए आउ बी भितरे जो परीक्षा हैला यार कट ऑफ गला एसी रो 340 यूआर रो 550 किंतु एई जो ए पिलाटा ए भलरे देखंतु 620 मार्क रखिला 650 रु 620 मार्क रखिला whereas बी पिलाटी 545 मार्क रखिला बी पिलाटी कोन रखिला मात्र 5 मार्क पई ए पाइला नाही तो एबे ए बी पिलाटा कंप्लेन करिवो कि ए पिलाटा रिजर्वेशन नै किना जदी एमबीबीएस माने पाई न थांता से तेन करी रिजर्वेशन नेला बुली एठी से एमबीबीएस पाइला तेन करी से एठी यूआर पोस्ट रे पाइबो नाही चाकरी कहि परिबो कि ना काहे कि ए सिलेक्शन बुझंतु ए सिलेक्शन आउ ए सिलेक्शन दीटा कहला अलगा अलगा तो एठी से रिजर्वेशन रो लाभ नै थाई पारे किंतु एठी से रिजर्वेशन रो लाभ नै नाही जोटा कि आपनकर सौरभ यादव क्लास जो सौरभ यादव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कहिले जे तमे एमिति कन्फाइंड करि परिबा नै जदी जनकर अधिक मार्क अछि ताकू तमे मेरिट नबो ही नबो तो एठी हमें कहि परिबा नै जे आज्ञा एई पिलाटा आज मेडिकल चाकरी पाइछि बिकॉज़ से रिजर्वेशन नै किना पाठ पढतला बुली तेनु को ताकू तमे देई परिबो नाही कोउथिरे यूआर रे देई परिबो नाही ताकू तमे एससी रे दियो एई कथा कहि होबो नाही हैला तो एबे आमे आसीबा जोटा आमे प्रथमे कहितिले जे सुप्रीम कोर्ट को हमर जो ट्रिब्यूनल कोन कहितला
ट्रिब्यूनाल एठी जो जिनस आमे कहिले सेही जिनस कहिछि जे आमे एपन जहा डिस्कशन करथिले जे प्रथमे से कहिले जो हलदिया जोन 9 नंबर पारे जे रिजर्व कैटेगरी पोस्ट को केवल रिजर्व कैटेगरी लोक माने जाई परिबे व्हेयर एज अनरिजर्व कास्ट कैटेगरी पोस्ट को रिजर्व कैटेगरी पिला जिबा सहित अनरिजर्व कैटेगरी पिला जाई परिबे किंतु एमाने रिजर्व पोस्ट को जाई परिबे नाही हैला तो सीआईटी कहले रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स आर to be considered against your vacancy at par and equal footing with other your candidates and be given promotion against your vacancies and such number cannot be added to the total number of promotion given to the reserve category तो से कहले जदि एई रिजर्व कैटेगरी लोक किछि हमर अनरिजर्व कैटेगरी बाय भार्चु ऑफ देयर मेरिट जदि से माने पाउचंती पदोन्नति हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो बा इवन एडमिशन हो जदि गोटे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बाय भार्चु ऑफ देयर मेरिट रे जदि जाउची मेरिट रे जदि से ए अनरिजर्व पोस्ट को होल्ड करूची ताहाले ए रिजर्व कैटेगरी रो पिलाटा को माने ए रिजर्व पोस्ट अगेंस्ट रे काउंट करा जिवो नाही ताको कोउथरे काउंट करा जिवो अनरिजर्व पोस्ट रे ताहाले सेही जिंसटा को हमर 9 नंबर 2 नंबर पारा रे कहछि से हला तो इट इज क्लियर दैट रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स like the present applicant मान जो माने हमर मनमत सामल हेरिका जो 36 जन को दिया जाई नथिला सेमान को केस have to be considered against your post in promotional vacancies at par with their your category counterparts and in case found suitable are to be given promotion against such vacancies and number of cannot be added to promotional slots as reflected in the respective roster part से जो कथा कहले जो ए जो 36 जन का कथा तमे रिव्यू डीपीसी करबो आ तांकर केसटा को तांकर इक्वल फुटिंग रे थिबा यूआर कैंडिडेट माने सहित कंपेयर करबो मेरिट असेस करबो जदी से माने तांको ठो अधिक मेरिटियस ताहाले तांको तमे यूआर कैटेगरी रे प्रमोशन दबो आ प्रमोशन देला बेलकू तमे तांको जो माने यूआर रे पाइबे सेही पोस्ट को यूआर शो करबो नाही किंतु होम डिपार्टमेंट सेही डीपीसी रे सेमानकू यूआर आकार रे नै थिले किंतु सब्सिक्वेंटली ग्रेडेशन लिस्ट तांकू एससी रे शो करथिले जोटा कि एई मान्यवर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर वायलेट होईछि मो आगु बेले देखैबी हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन प्रोसीजर सेठी आपण पूरा क्लियरली जानि परिबे तो एई जिंसटा पूरा संपूर्ण भूल हेतिला हेटी तो एठी मध्ये हमर जो स्टेट रेस्पोंडेंट जोटे थिले स्टैंडिंग काउंसिल ड्यूरिंग आर्गुमेंट स्टैंडिंग काउंसिल कार हमर पिटिशनर कर जो हमर रेस्पोंडेंट मानकर जे स्टैंडिंग काउंसिल थिले गवर्नमेंट तरफ जे छिडा हेतिले से दीपा ईबी ताको साइड करथिले तो कहले से कोन कहथिले दीपा ईबी कहथिले जदि जने वांस रिलैक्सेशन नै गला वांस रिलैक्सेशन नै गला परे से रिजर्व कैंडिडेट हे गला से आउ केबेटा जीवन रे से कोन हे परिबो नै यूआर हे परिबो नै तो एठी से एटा कहले एटा एठी रिलेवेंट न एटा एठी रिलेवेंट न सेटा सेठी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रे हेछि तो ताकू तमे हेठी जाइना देखो तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो एससीबीसी पिला यूआर फीमेल पिला जो माने हमर रहिले बा एक्सर्विस मैन पिला जो पीडब्ल्यू पिला स्पोर्ट्स पर्सन पिला एमान समस्त रिजर्वेशन जो नेगिना आछन सेमान यूआर को जाउछन पर तमे एठी दीपा भी कोन कहउछ तो एई जिंस कहितला से कहितले जे तो डज नॉट एनीवे हेल्प द केस ऑफ द रेस्पोंडेंट हैला तो फ्रॉम द above it would be clear that the respondent have grossly erred मस्त बड़ भूल करछथि not considering the case of the applicants in the DPC dated 18/8/2007 जो DPC हेतरे ताकू सिलेक्ट न करिबाटा तांकर गोटे मस्त बड़ भूल करछथि अगेंस्ट यूआर वैकेंसी रे हैला कि तेनु करी से कोन करथिले ओएटा को अलाउ करथिले आउ जो ग्रेडेशन लिस्ट जो हेगले जूनियर्स जो दिया हेतला से डीपीसी रो को टोटली पास करथिले एंड आउ थरे कहथिले रिव्यू डीपीसी करिया बुझला तो आजी हमर समान जिंस सार आजी हेछि कोथरे हमर जो हाई कोर्ट कर निर्देश हाई कोर्ट मध्य समान जिंस को साइड करिकना से देखिथिले देखंतु ऑन स्क्रूटिनाइजिंग द अफर्मेंशनड फैक्ट्स on scrutinizing the aforementioned facts the conjunction with the judicial department government तेणु कर एई जो
जिनस सुप्रीम कोर्ट 22 मसीह कन्फर्म करछंती जे एटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो बा प्रमोशन हो जदि तुमरो मेरिट आसेस करूना हो ताहले तमे सीनियरिटी को मेरिट हिसाब रे नैका तमे ताको लास्ट ईयर कैंडिडेट जे थिबो तार ऊपर जे थिबो ताको तमे यूआर रे कंसीडर करिवो एंड ताको यूआर हे प्रमोशन देबो आ जो एससी एसटी पिला मानकू प्रमोशन रे आ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रे जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हमरो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एमन जो माने भी पाउचंती प्रमोशन बा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेरी लास्ट ईयर कैंडिडेट ऊपर दे हैव टू बी ट्रीटेड एज हला कोन यूआर कैंडिडेट। तो आज पई सेति की थाउ बहुत लंबा वीडियो हेछि बथे मु तो गोटे पर गोटे आपण मानको पई जेति की रिक्वेस्ट थिला ताकू आज हमर सरी गला आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे एई ऑर्डर टाको संपूर्ण रूपे पुखानुपुख आकू अवलोकन करिवा। तो एई मझिरे आ गुटे सुप्रीम कोर्ट रो मध्ये जजमेंट आसी गला हैला। तो सिमिलर जजमेंट 20 अगस्त 2024 टिके खाली देखि दउछ आपनको एठी मध्ये समान जिंस हेछि गोटे परीक्षा हेछि देखन एठी जे यूआर कैंडिडेट 291 मार्क रखिला बेलकू ओबीसी 465 एससी हला 314 एंड एसटी हला 4 ईडब्ल्यूएस हला 428 माने यूआर कैटेगरी रे सबटु लोएस्ट जाइछि। तो एई जिंसटा को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक दर्शाइछंती एया फल रे एई जिंस हेबा फल रे से कोन कहिले ओबीसी मानकू तांकर निजर कोटा भीतर रखि देले आ यूआर को छाडलेनी एससी मानकू तांकर कोटा भीतर रखिले यूआर को छाडलेनी ईडब्ल्यूएस मानकू मध्य तांकर निजर कोटा जो 10% भीतर रखिले यूआर को छाडलेनी या फल कोन हैला 77टा यूआर पोस्ट कोन हैला वैकेंट रहिला वा नॉट फिल्ड अप माने पोस्ट फिल अप करले कि कागो देले नै। तो एइटा को हमर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरा असंवैधानिक दर्शाइछंती एवं एटा पूरे मध्य प्रदेश रो गोटे जजमेंट एबे रिसेंटली आसीची ताकू मध्य हमें ए जो या सहित माने हाई कोर्ट को ऑर्डर परे मध्य अवलोकन करिबा। तो आपण मानकू आउ थरे अनुरोध रहिला समस्त को निवेदन रहिला जे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे आउ कमेंट रे आपनकर जदि कोनसे संदेह रहितबा ताले कमेंट रे उपस्थापन करिबा को मध्य आपण मानकू अनुरोध रहिला। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।